Hi students, welcome to my YouTube channel JEE Math Guru, and in this lecture we are going to solve the important questions on the general solution of trigonometric equations. In the last lecture we have solved some examples. 15 questions हमने solve किए थे on the general solution of the trigonometric equations. All those examples, all those MCQs were very important, and now in this lecture we will solve the next 15 questions, 15 to 30, and these questions are also very important for MHT CET. So students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon to get the notification of my newly uploaded videos. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16, सी ऑन द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 16. So I have this question number 16. If this determinant, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे मुझे एक डिटर्मिनेंट दिया है whose first row is cos of a plus b minus sin of a plus b cos of 2b. Second row is sin a cos a sin b, and third row is minus cos a sin a and cos b. Value of this determinant is given to be 0 and I have to find the angle b. So options में हमें दिए हैं जनरल सॉल्यूशंस, जनरल वैल्यू ऑफ b फाइंड आउट करने की है. सो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट. इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे. So by solving this determinant, I have this cos of a plus b into cos a cos b minus sin a sin b, cos of a plus b into cos a cos b minus sin a sin b. So cos a into cos b minus sin a into sin b is the formula of cos of a plus b. So this is again cos of a plus b. Minus into minus, I am expanding the determinant along the first row. Minus into minus plus sin of a plus b. Now the determinant which is to be multiplied with this term is sin a into cos b minus plus cos a into sin b. तो यहाँ फॉर्मूला मिलेगा sin a into cos b plus cos a into sin b. So sin a into cos b plus cos a into sin b is again sin of a plus b. Okay, now the last term is plus cos of 2b into this plus cos of 2b. Now the terms determinant multiplied is sin a into sin a sin square a minus plus cos square a. So it is sin square a plus cos square a equal to 0. So this is the determinant. Now cos a plus b into cos a plus b is cos square a plus b. This is sin of a plus b into sin of a plus b, sin square of a plus b, and sin square of a plus b plus cos square of a plus b is 1 plus again this sin square a plus cos square is 1. So 1 into cos of 2b is cos of 2b is equal to 0. So therefore cos of 2b equal to minus 1. Cos of 2b equal to minus 1, and I have to find the general value of b. So first, what is the general solution of cos theta equal to minus 1? Cos कब minus 1 होता है? At the odd multiple of pi. So here is the general solution of cos theta equal to minus 1. That is, if cos theta equal to minus 1, then theta is equal to 2n plus 1 into pi, odd multiple of pi. So it is 2b will be equal to theta is equal to 2n plus 1 into pi. So here theta means 2b, so that will be 2n plus 1 into pi, and thus I have this value of b is equal to 2n plus 1 into pi by 2. So this is the solution of this trigonometric equation, and the value of b is 2n plus 1 into pi by 2. So this
answer is in option A. So this is the solution to this question number 16 of this video lecture of trigonometric equation, general solution of trigonometric equation for MSTCET. So see the students all the steps carefully. All the questions to this general solution of trigonometric equations are very important. Now students, we will continue with the next question number 17, and here we have asked the number of solutions of the equation tan theta plus sec theta equal to root 3, where theta is less than 2 pi greater than or equal to 0. So in this question number 17, I have to find the number of solutions, and my given trigonometric equation is tan theta plus sec theta is equal to root 3, and I have to find the number of solutions. थीटा के number of values हमें find out करने के हैं in the interval 0 to 2 pi, which will satisfy this equation. So there is an important result. If tan sec theta plus tan theta अगर k है, this is the important result. If sec theta plus tan theta is equal to k, then sec theta minus tan theta is equal to 1 by k. Sec theta plus tan theta or sec theta minus tan theta are reciprocals of each other, because if we multiply these two equations, sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Sec square theta minus tan square theta equal to 1 है. So sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta equal to 1. So sec theta plus tan theta is equal to 1 upon sec theta minus tan theta. So therefore these two terms, sec plus tan and sec minus tan, are the reciprocals of each other. So here is this equation, sec theta plus tan theta equal to root 3. So I can write sec theta minus tan theta is equal to 1 by root 3. So I have these two equations. Now we will find the value of tan theta from these two equations. So I will rewrite this equation as, इसे मैं फिर से लिखता हूँ. So it is sec theta plus tan theta equal to root 3. I will subtract this second equation from first equation. So it is minus minus. So therefore this plus sec theta minus sec theta will get cancelled. This is minus of 2 tan theta equal to 1 by root 3 minus root 3. So therefore it is minus of 2 tan theta equal to 1 minus 3 minus 2 by 1 minus 3 minus 2 by root 3, and like this I have the value of tan theta equal to minus 2 will get cancelled, 1 by root 3. Now the equation is very simple. Equation काफ़ी simple है. अब हमें इस 1 by root 3 को tan में एक्सप्रेस करने का है. So this tan of theta is equal to 1 by root 3 is the value of tan of pi by 6, tan 31 by root 3. Now I must know the general solution of the equation tan theta equal to tan alpha, and here is the general solution of tan theta equal to tan alpha. तो फार्मूला ऐसा है, if tan theta equal to tan alpha then theta equal to n pi plus alpha. So लेकिन मुझे फाइंड आउट करने के है जनरल सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट करने का है. आई हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ओके, सो हियर tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 by root 3. सो tan इज पॉजिटिव, सो 0 to 2 pi में मुझे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के हैं. सो tan इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, tan इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. तो यहाँ पे मुझे थीटा सॉल्यूशन मिलेगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन मिलेगा पाई बाय 6 tan 31 by root 3, एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट द सॉल्यूशन विल बी पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6. सो देयरफॉर दीज आर द टू सॉल्यूशंस, पाई बाय 6 एंड 7 पाई बाय 6 इन 0 to 2 pi. ओके, सो 0 to 2 pi में मुझे दो सॉल्यूशंस मिलेंगे. सो हियर आर द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 in the interval 0 to 2 pi satisfying these trigonometric equations, and this is answer C. So this is question number 2
17, and now we will see the next question number 18. See the question number 18 of general solution of trigonometric equation. तो इस क्वेश्चन में मुझे 18 में दिया है cos of 40 is equal to x and cos of theta equal to 1 minus 2x square. Then possible values of theta lying between 0 and 360 degree is. Okay, so here cos of 40 is equal to x and cos of theta is equal to 1 minus 2x square. So I have to find the value of theta which lies between 0 to 360 degree, 0 to 2 pi. So hello students, here cos of theta is equal to 1 minus 2, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो x square means it will become cos square of 40 degree. I will take minus common, so it is 2 cos square of 40 degree minus 1. So minus as it is 2 cos square theta minus 1. 2 cos square theta minus 1. cos of 2 theta के 4 फार्मूलेज है. फर्स्ट है cos square theta minus sin square theta. सेकंड वन इज 1 minus 2 sin square theta. Third one is 2 cos square theta minus 1. And fourth one is 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. So this is cos of 2 theta. Cos of 2 times 40 ये होगा cos of 80. So इस तरह से मुझे इक्वेशन मिला है cos of theta equal to minus cos of 80. So here minus cos of 80, this value is negative, so cos is negative. तो यहाँ पे cos थीटा निगेटिव है बिकॉज cos ऑफ 80 पॉजिटिव है. पॉजिटिव इंटू दिस माइनस 1 ये नेगेटिव हो जाएगा. तो मुझे थीटा फाइंड आउट करने का है बाय कंसिडरिंग दैट cos थीटा इज नेगेटिव. तो cos किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सो cos इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट. cos इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. So cos is negative in second and third quadrant. So in second quadrant solution will be cos of pi minus theta 180 minus 80. Cos of 180 minus theta is minus cos theta, so it is cos of 100 degree, and this is the value of cos of theta. Cos of theta equal to 100 degree. अब देखिए cos of theta is equal to minus cos of 80. cos is negative in, ये वैल्यू नेगेटिव है cos की. थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन भी मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो आई विल राइट दिस cos of theta is equal to minus cos theta को मैं लिख सकता हूँ cos of 180 plus theta, that is cos of 180 plus 80. So this will be cos of 260. So cos of theta equal to cos of 100 and cos of theta equal to cos of 260. It means theta is equal to 100 degree and 260 degree. So this is the value of theta satisfying these two relations in the interval 0 to 2 pi. So here is option A which is correct to this question number 18. Now we will solve the next question number 19. So students, all the questions, all the MCQs are very important. See all the solutions, all the steps carefully. इसी टाइप के क्वेश्चंस MST CET एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. So now see the next 19, and here is my question. General solution of the equation sin x minus cos x equal to root 2 for any integer n is. तो जनरल सॉल्यूशन मुझे फाइंड आउट करने का है और मेरा इक्वेशन है sin x minus cos x equal to root 2. So this equation is in the form of a cos theta plus b sin theta equal to c. तो उस टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है. डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. लेकिन हमें इस टर्म को साइन में कन्वर्ट करने क्या है कि कॉस में कन्वर्ट करने का है. इसके लिए हम थोड़ा ऑप्शंस भी देखेंगे. सो ऑप्शंस सभी कॉस के लग रहे हैं. ओके,
तो इसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू -√2. नाउ आई विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय √(a² + b². This expression is in the form of a cos theta plus b sin theta, a cos theta plus b sin theta equal to c. So divide by √(a² + b². So here a is 1, b is -1. तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा √(1 + 1 √2) से. तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलेगी cos x इंटू 1/√2 माइनस साइन एक्स इंटू 1/√2 equal to -√2/√2 is -1. Okay, so this is cos of pi/4, this is sin of pi/4. So cos a cos b minus sin a sin b cos of a plus b, cos of a plus b, b यहाँ पे cos pi/4 है, यहाँ पे sin pi/4 है, तो b बनेगा मेरा pi/4. and this is the value of cos of इसे -1 ही रखते हैं. अब जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos थीटा इक्वल टू -1. cos कब -1 होता है? सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos थीटा इक्वल टू -1 इज थीटा इक्वल टू 2n + 1 पाई. सो हियर थीटा इज x + pi/4. सो cos ऑफ थीटा इक्वल टू -1 का जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू 2n + 1 पाई. ओके, सो दिस इज 2n पाई प्लस पाई एंड x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई माइनस pi/4 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई माइनस pi/4, ये होगा 3π/4. तो ऑप्शन चेक करते हैं. 2n पाई प्लस 3π/4, दिस इज ऑप्शन बी. तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos ऑफ थीटा इक्वल टू -1, ये फार्मूला, ये जनरल सॉल्यूशन आपको याद होना चाहिए. cos ऑफ थीटा अगर -1 होता है तो थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज 2n + 1 इंटू पाई. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 19. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ दिस lecture of general solution of trigonometric equation. All the questions are very important, students. Now here is my next question number 20, and here the equation is cos of theta is equal to cos theta minus sin 4 theta. General value of theta पूछा है. So see the question number 20 on the board, and the given equation is cos of 7 theta is equal to cos theta minus sin of 4 theta. So I have to find the general value of theta. ओके, तो इससे मैं इस तरह से सॉल्व करता हूँ. ये बनेगा sin of 4 theta is equal to cos theta minus this cos of 7 theta. So sin of 4 theta is equal to, अब मैं यूज करूँगा cos c minus cos d. Formula number 4 of factorization. So what is cos c plus cos d? Cos c minus cos d. So cos c minus cos d is 2 sin c plus d by 2 into sin of d minus c by 2 यूज करेंगे. So it will be 2 sin c plus d by 2, क्या होगा 3 theta. Sorry, it will be 4 theta c plus d by 2, 8 theta by 2, 4 theta इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, 7 थीटा माइनस थीटा 6 थीटा, 6 थीटा अपॉन 2 कितना होगा 3 थीटा. सो दिस साइन 4 थीटा साइन 4 थीटा कैंसल नहीं करने का है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते समय द टर्म्स विच आर इन प्रोडक्ट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन शुड नेवर बी कैंसल्ड. इससे आपका जेन्युइन सोल्यूशन का लॉस होता है. सो नेवर कैंसल दिस टर्म्स. So taking sin of 4 theta common, 1 minus, ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसफर कीजिए, 1 minus sin of 3 theta equal to 0. So here sin of 4 theta will be equal to 0.
और यहाँ से मुझे मिलेगा ये होगा 2 माइनस 2 कॉम ये 2 साइन 3 थीटा है. सो हियर साइन ऑफ 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन ऑफ 4 थीटा कॉमन लिया है तो 1 माइनस 2 साइन 3 थीटा होगा. तो ये बनेगा साइन ऑफ 3 थीटा इक्वल टू 1/2. नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. What is the general solution of sin theta equal to 0, that is theta equal to n pi, and what is the general solution of sin theta equal to sin alpha, that is sin n pi plus minus 1 to the power n into alpha. So using these two formulas, 4 theta will be equal to n pi, and this is sin of pi by 6 sin theta equal to sin alpha. इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा यानी 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा. सो लाइक दिस आई विल हैव दीज टू जनरल सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन. एक वैल्यू मिलेगी मुझे n पाई बाय 4 एंड सेकंड वैल्यू बाय डिवाइडिंग बाय 3 n पाई बाय 3 प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू पाई बाय 18. So this is the general solution of this trigonometric equation. n pi by 3 plus n pi by 3 n pi by 4 or n pi by 3 plus minus 1 to the power pi by 18. So this is in the option C. Okay. Now see the next question number 21. Question number 21 is also very important. So students, trigonometry के formulas as well as the formulas for general solution of the trigonometric equation, ये सभी formulas आपको याद होने चाहिए. प्रैक्टिस भी आपको करने की है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो. See the next 21. And here is the trigonometric equation. Tan of cot x equal to cot of tan x. Tan of cot x equal to cot of tan x है तो sin x या sin 2x का कौन सा ऑप्शंस करेक्ट है ये हमें चेक करने का है. सो माय गिवन इक्वेशन इज tan of cot x इज इक्वल टू cot of tan x. सो ये tan थीटा है तो इस cot को भी मैं tan में एक्सप्रेस करूँगा. So tan of cot x, sorry, this is tan of cot x is equal to ये cot theta है तो cot theta is tan of pi by 2 minus theta. Tan of cot of theta is tan of pi by 2 minus theta है tan x. अब इक्वेशन हो गया tan theta equal to tan alpha. इक्वेशन किस फॉर्म में tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा. तो उसका जनरल सॉल्यूशन देखिए. इफ़ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा. सो थीटा यानी cot x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा. तो यह अल्फ़ा क्या है पाई बाय 2 माइनस tan x. ओके, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा. ये थीटा है, ये अल्फ़ा है. तो इस माइनस tan x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को. सो tan x प्लस cot x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 2. इसे मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करूँगा. सो इट इज साइन x बाय कॉस x प्लस cot x होगा cos x बाय साइन x. सो दिस विल बी 2n प्लस 1 पाई बाय 2. पाई कॉमन लीजिए n प्लस 1 बाई 2. सो इट इज़ 2n प्लस 1 पाई बाय 2. सो नाउ दिस साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज 1 अपॉन साइन x इंटू कॉस x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2. सो इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. सो 2 अपॉन ये बनेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. सो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा साइन ऑफ 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2. सो यहाँ से साइन 2x की वैल्यू क्या मिलेगी देखिए. सो देयर फॉर साइन ऑफ 2x इक्वल टू 2 इंटू 2 4 अपॉन
2n plus 1 into pi. So this is the value of sine of 2x. So sine of 2x is 4 upon 2n plus 1 pi. So this is in the option C. So this question is also very important, very best question of trigonometric equation to find the general solution. So this was 21. Now see the next 22. See the next question number 22 for general solution of trigonometric equations. So students, 2 लेक्चर्स में हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और एक लेक्चर में हमने पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले देखे हैं. सो ऑल दिस देयर आर टोटल 3 लेक्चर्स ऑन दिस जनरल सॉल्यूशंस. सो प्लीज सी ऑल द लेक्चर्स केयरफुली. 22 में देखिए, इसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन. किस इक्वेशन को सॉल्यूशन नहीं है. सो हियर इज माय फर्स्ट ऑप्शन. देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा. तो इसे चेक करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्यूशन है या नहीं. तो इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 1 बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. So this will be cos theta minus sin theta upon sin theta into cos theta. ये sin into cos कैंसिल हो जाएगा equal to 1. Is it possible? Cos theta minus sin theta 1 हो सकता है. So for this we know that maximum and minimum value of a cos theta plus b sin theta. So the a cos theta plus b sin theta is less than or equal to root of a square plus b square, greater than or equal to minus root of a square plus b square. So maximum value of this expression is root of a square plus b square and minimum value of this expression is minus root of a square plus b square. So इसकी maximum और minimum value क्या होगी. So इसकी maximum value होगी √2, minimum value होगी minus √2, root of a square plus b square, and 1 is in between minus √2 to √2. So therefore this equation will have solution. इस equation को solution है क्योंकि ये possible है cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 and 1 is in between minus √2 to √2. सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं. तो यहाँ पे मेरा सेकंड ऑप्शन है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1. कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 हो सकता है या नहीं. सो दिस इज 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1. इसका मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1. साइन एक्स इंटू थीटा है या ओके थीटा में दिया है. सो दिस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा इक्वल टू 2. सो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2. दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज साइन लाइज इन बिटवीन -1 to 1. दिस इज नॉट पॉसिबल. दिस इक्वेशन डज नॉट हैव सोल्यूशन. इसे सोल्यूशन है, इसे सोल्यूशन नहीं है. ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी चेक कर सकते हैं. अब ऑप्शन सी में मुझे इक्वेशन दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2. सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी √2, मिनिमम वैल्यू क्या होगी -√2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो इसे भी सोल्यूशन होगा. डी ऑप्शन में देखिए इक्वेशन दिया है √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2. सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 + 1 4. 4 का रूट कितना होगा 2. 4 का रूट कितना होगा 2. सो मैक्सिमम वैल्यू 2 है, मिनिमम वैल्यू -2 है. सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. सो द इक्वेशन कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू -1. दिस इक्वेशन विल हैव not any solution. So here the option B is correct. Now see the next question number 23. This question is also very important.
सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही इस लेक्चर में मैंने सिलेक्ट किया है ताकि आपके ऑल टाइप्स के इक्वेशन कवर हो जाए, सभी फॉर्मूलेज रिवाइज हो जाए। सो सी द क्वेश्चन नंबर 23. So in this question, if tan of pi by 2 sin theta plus cot of pi by 2 cos theta, tan of pi by 2 sin theta is equal to cot of pi by 2 cos theta है, तो sin theta plus cos theta क्या होगा? So this is also very simple question, सिंपल फार्मूला यूज़ करने का है। tan of pi by 2 sin theta equal to cot pi by 2 cos theta। तो इस कॉट को भी tan में एक्सप्रेस करेंगे। जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करते आना चाहिए। सो इट इज़ tan ऑफ पाई बाई 2 साइन थीटा, कॉट थीटा इज tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉट थीटा इज tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस कॉट थीटा इज tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना है? पाई बाई 2 कॉस थीटा। अब इक्वेशन बन गया है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। सो सी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। काफ़ी बार हुआ है, आपको फॉर्मूले भी लर्न हुए होंगे। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या है? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। सो हियर थीटा इज पाई बाई 2 साइन थीटा, n पाई प्लस अल्फा क्या है? पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कॉस थीटा। सो दिस पाई बाई 2 कॉस थीटा को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसफ़र करेंगे, पाई बाई 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में मुझे मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2। तो ये है n प्लस 1 बाई 2 पाई। सो n प्लस 1 बाई 2 पाई यानी 2n प्लस 1 पाई बाई 2। So this pi by 2 and this pi by 2 will get cancel and the value of sin theta plus cos theta कितना होगा? 2n plus 1. So 2n plus 1 is the value of sin theta plus cos theta which is in the option B. Okay, so this is the solution to question number 23. Now see the next question number 24. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 फॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो 24 में मुझे दिया है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos x टू द पावर 50 माइनस साइन x टू द पावर 50 इक्वल टू 1। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है? cos x टू द पावर 50 माइनस साइन x टू द पावर 50 इज इक्वल टू 1। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोचते होंगे कि इसे इतने बड़ा पावर है 50, इसे कैसे सॉल्व करने का है। सो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमको याद ही रखने का है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसे टेक्निक ऐसी है, कॉस ऑफ x टू द पावर 50 इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x टू द पावर 50। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की कंसेप्ट यूज़ करके हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। व्हेन दिस टू साइड्स विल बी इक्वल, ये दोनों साइड कब इक्वल होगी? सो हियर अगर हम राइट हैंड साइड के बारे में सोचते हैं, राइट हैंड साइड के देखिए 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर 50, तो साइन एक्स इज साइन एक्स टू द पावर 50 इवन पावर है, तो ये टर्म पॉजिटिव होगी, ये टर्म पॉजिटिव होगी या जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसमें से पहले से 1 ऐड है, तो दिस राइट हैंड साइड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये 1 और इसकी वैल्यू 1 0 से ज़्यादा है, 0 से 1 के बीच में होगी। साइन एक्स माइनस 1 टू 1 के बीच में रहता है, तो पावर इवन होने के कारण 0 टू 1 के बीच में रहेंगी। सो 1 प्लस समथिंग दैट लाइज बिटवीन 0 टू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एंड यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड देखिए, सो कॉस एक्स टू द पावर 50। सो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? कॉस इज इन बिटवीन -1 to 1, बट हियर इज ऑल्सो पावर 50। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी?
दिस इज 1 और लेस देन और इक्वल टू 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी या 1 से कम होगी, 0 to 1 के बीच में होगी। तो ये दोनों कब इक्वल होंगी? व्हेन दिस टू विल बी इक्वल। सो दिस टू साइड्स विल बी इक्वल इफ LHS will be equal to RHS if this sin x is equal to 0। sin x 0 हो सकता है, अगर है 0 है तो दोनों साइड इक्वल होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, सो 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा इफ sin x इक्वल टू 0 एंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू 0 इज x इक्वल टू n pi। दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन and the option A is correct। So this was 24. See the next 25. See the next 25. Next question number 25। यहाँ पे भी जनरल इक्वेशन है tan थीटा माइनस √2 sec थीटा इक्वल टू √3। थीटा की जनरल वैल्यू पूछी है, tan थीटा माइनस √2 sec थीटा इज इक्वल टू √3। तो पहले इसे हम साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। वी विल कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, बाद में सोचते हैं इसे कैसे सॉल्व करने का है। सो हियर इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू √2 बाय कॉस थीटा इक्वल टू √3। सो साइन थीटा माइनस √2 इक्वल टू √3 कॉस थीटा। So this sin theta sin of theta minus √3 cos theta equal to √2। So again a cos theta plus b sin theta equal to c। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड या साइन में कन्वर्ट करने की या कॉस में कन्वर्ट करने की, इसलिए एक बार ऑप्शंस को भी हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमें सॉल्व कैसे करने का है ये हमें ऑप्शन से भी पता चलता है। सो हियर आर द ऑप्शंस। देखें n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n के फॉर्म में दिख रहे हैं चारों ऑप्शंस, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n। इसका मतलब हमें साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला यूज़ होगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा। तो इसे साइन में कन्वर्ट करेंगे तो इस इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा √a² प्लस b²। सो √a² 1 प्लस b² √3 का स्क्वायर 3। सो मुझे 2 से डिवाइड करने का है, सो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2। सो साइन थीटा इंटू 1/2 माइनस √3/2 इंटू कॉस थीटा, और √2/2 कितना होगा 1/2, √2/2 इज 1/2। तो ये होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये साइन ए, ये है cos 60, ये है sin 60। सो 60 इज π/3। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करके देखिए, साइन थीटा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। सो दिस इज साइन ऑफ π/4। ओके, सो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा। मैंने पहले ही बोला था कि ऑप्शन से एक बार देख लेंगे। तो साइन में कन्वर्ट करने के बाद हमें इक्वेशन मिला है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, एंड हियर इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा। सो यहाँ पे मेरा थीटा है थीटा माइनस π/3 इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कितना है π/4। इस माइनस π/3 को यहाँ पे ट्रांसफ़र कीजिए तो ये बनेगा प्लस π/3, और इस ऑप्शन को चेक कीजिए। सो दिस इज इन द ऑप्शन n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, π/4 प्लस π/3 लास्ट ऑप्शन में है। सो दिस वाज 25। सी द नेक्स्ट 27। Next question number 27. So see the question number 27. Sorry, 25 है, 26. Here is the question. The equation √3 sin theta plus cos theta equal to 4.
दिस इक्वेशन हैज़ ओनली वन सोल्यूशन, टू सोल्यूशंस, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। सो काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है। अब भी मैंने बोला था दिस इज चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से चेक करने का है। सो √3 sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 4। अगर इसकी वैल्यू 4 पॉसिबल है तो सॉल्यूशन होगा, अगर 4 पॉसिबल नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ढूंढते हैं। सो √3 sin थीटा प्लस कॉस थीटा इज लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू √(a² + b² माइनस √(a² + b²। सो इट इज़ 3 + 1, इट इज माइनस √3 + 1 माइनस 2, यहाँ पे आएगा √3 sin थीटा प्लस कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू। सो √3 sin थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, मिनिमम वैल्यू -2 है। तो लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितना देता है 4, तो इसकी वैल्यू 4 हो ही नहीं सकती क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। सो नो सॉल्यूशन वाला ऑप्शन है लास्ट। ओके या फिर स्टूडेंट्स अगर हमें इक्वेशन इस फॉर्म में है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c, तो इसे हम डिवाइड करते हैं √(a² + b² से इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस b/√(a² + b² इंटू कॉस थीटा इक्वल टू c/√(a² + b²। अब ये राइट साइड का नंबर जो है बाय डिवाइडिंग बाय √(a² + b², दिस शुड बी -1 to 1, ये -1 to 1 के बीच में होना चाहिए, तभी इसको सॉल्यूशन होगा। क्योंकि ये एक्सप्रेशन एक तो साइन में कन्वर्ट होता है या माइनस कॉस में कन्वर्ट होता है। सो यहाँ पे अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं √(a² + b² से तो ये 2 हो जाएगा इक्वल टू 2, ये तो 2 है, दिस इज इसकी वैल्यू कितनी है 2। सो ये -1 to 1 के बीच में 2 नहीं आता है, देयरफॉर दिस इक्वेशन डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। So this was 26. Now see the next 27. 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन 27, एंड हियर is the question, the number of solutions of the equation sin x equal to sin 2x between -π/2 to π/2। तो मेरा गिवन इक्वेशन है sin x इज इक्वल टू sin of 2x, sin of x इज इक्वल टू sin of 2x। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें फाइंड आउट करने के हैं इन द इंटरवल -π/2 to π/2। तो सिंपल है, फॉर्मूलेज यूज़ करेंगे। sin x इक्वल टू sin 2x है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, sin x कैंसिल नहीं करने का है, sin x कॉमन, तो ये बन जाएगा 1 - 2 cos x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे sin x इक्वल टू 0 होगा, cos x इक्वल टू 1/2 होगा, और इंटरवल क्या दिए है -π/2 to π/2। सो हेयर इज द इंटरवल फॉर थीटा और x -π/2 to π/2। सो -π/2 to π/2 में साइन कहाँ पे 0 होता है, एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 साइन 0 इज 0 इन बिटवीन -π/2 to π/2। अब कॉस कहाँ पे, कॉस पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो x विल बी इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा π/3, फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन क्या होगा -π/3, -π/2 to 0 में एंगल नेगेटिव होगा -π/3। सो हियर इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे 1, 2 and 3। सो हियर आर द 3 वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं 3, एंड दिस इज इन द ऑप्शन ए। So this was 27. See the next 28. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28।
All the questions are very very important. So see students, question number 28, set of values of x for which this trigonometric equation is, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x की वैल्यूज क्या है। वेरी फेमस क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट्स तो ये क्वेश्चन देखने के बाद ही आंसर बोल देते हैं, लेकिन बट बी केयरफुल, इस टाइप के सभी क्वेश्चंस का आंसर 5 नहीं होता है। सो देखिए स्टूडेंट्स, tan ऑफ 3x इक्वेशन ऐसा है, tan ऑफ 3x माइनस tan ऑफ 2x बाय 1 प्लस tan 3x इंटू tan ऑफ 2x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b इज द फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ a प्लस b। तो फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस b, tan ऑफ a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, tan ऑफ a माइनस b। सो a माइनस b मीन्स 3x माइनस 2x, सो tan x इक्वल टू 1। तो tan x इक्वल टू 1 होगा तो x कितना होगा, पाई बाय 4 या n पाई प्लस पाई बाय 4। x क्या होगा, n पाई प्लस पाई बाय 4, बिकॉज दिस इज tan ऑफ पाई बाय 4, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। अब अगर हम x इक्वल टू पाई बाय 4 या n पाई प्लस पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम होगी। सियर, अगर हम n इक्वल टू 0 लेके x की वैल्यू पाई बाय 4 लेते हैं तो tan ऑफ 2x इक्वल टू एट x इक्वल टू पाई बाय 4, तो x इक्वल टू अगर पाई बाय 4 लेता हूँ n इक्वल टू 0 लेके, n के किसी भी वैल्यू के लिए मिली हुई x की वैल्यू से दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सो ये x इक्वल टू पाई बाय 4 लेंगे तो पाई बाय 2 होगा, tan ऑफ पाई बाय 2 इज़ नॉट डिफाइंड, तो ये टर्म डिफाइन होगी ही नहीं, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो ही नहीं सकते। सो देयरफॉर दिस इक्वेशन डज नॉट हैव सॉल्यूशन, मीन्स दिस सॉल्यूशन इज नॉट देयर n पाई प्लस पाई बाय 4। तो ऑप्शन में सभी जगह पे पाई बाय 4 दिखाई दे रहा है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 5, दिस इक्वेशन डज नॉट हैव एनी solution. Now see the next 29. So 29 में हमें दिया है इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी बेस्ट क्वेश्चन। 29 में थीटा फाइंड आउट करने का है और इक्वेशन दिया है tan 3 थीटा माइनस 1 बाय tan ऑफ 3 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू √3। थीटा फाइंड आउट करने का है, जनरल सोल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से मैं एडजस्टमेंट करता हूँ। tan ऑफ 3 थीटा माइनस 1 को मैं लिखता हूँ tan ऑफ पाई बाय 4 अपॉन ये 1 पहले लिख लेता हूँ, और इसे tan 3 थीटा को लिखता हूँ मैं tan 3 थीटा इंटू tan ऑफ पाई बाय 4। tan ऑफ 3 थीटा इंटू 1 है, सो इस 1 को मैंने tan ऑफ पाई बाय 4 लिखा है, इस 1 को भी मैंने tan ऑफ पाई बाय 4 लिखा है, इक्वल टू √3। अब ये बन गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सो दिस इज tan ऑफ a माइनस b, tan ऑफ a माइनस b, और ये हो गया tan ऑफ 60 डिग्री पाई बाय 3, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा। जनरल सोल्यूशन क्या है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। सो हियर थीटा इज 3 थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 3, और यहाँ से मेरा 3 थीटा मिलेगा n पाई प्लस पाई बाय 3 प्लस दिस पाई बाय 4, और 3 से मैं डिवाइड करूँगा इक्वेशन को तो ये मिलेगा 3 थीटा विल बी इक्वल टू n पाई बाय 3 प्लस, सो इट इज़ 7 पाई बाय 12। 7 पाई बाय 12 को 3 से डिवाइड करने का है तो ये होगा 7 पाई बाय 36, n पाई बाय 3 plus 7 पाई बाय 36, this is in the option B. So students, this was the 29. See the next and the last question of this lecture of general solution of trigonometric equations. All the questions are very very important. So last question देखिए 30,
theta is in between 0 to pi by 2 and the given equation is sin of 2 theta equal to sin of 4 theta minus sin theta. So theta पूछा है. क्वेश्चन देखिए, sin of 7 theta is equal to sin of 4 theta minus sin theta. तो इससे मैं इस तरह से लिखता हूँ, साइन ऑफ 7 थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 4 थीटा. साइन सी प्लस साइन डी लगाइए, फैक्टराइजेशन साइन सी प्लस साइन डी. सो इट इज़ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 4 थीटा इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 3 थीटा. ये माइनस साइन ऑफ 4 थीटा विल बी इक्वल टू 0. अब यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ साइन ऑफ 4 थीटा, तो मेरा ब्रैकेट में मिलेगा 2 कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0. सो अब देखिए, साइन ऑफ 4 थीटा एक तो 0 होगा, आइदर साइन ऑफ 4 थीटा विल बी इक्वल टू 0 और cos of 3 theta will be equal to 1 by 2. So 4 theta will be equal to n pi, sin theta equal to 0 का जनरल सोल्यूशन theta equal to n pi और theta होगा n pi by 4. लेकिन मुझे theta पूछा है इन द इंटरवल 0 to pi by 2. So मेरा theta belongs to 0 to pi by 2 ओपन इंटरवल. फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा फाइंड आउट करने का है, तो n इक्वल टू 0 लेते हैं तो 0 मिलेगा, 1 लेते हैं तो पाई बाय 4 मिलेगा, 2 लेते हैं तो पाई बाय 2 मिलेगा. 0 टू पाई बाय 2 ओपन इंटरवल है तो वो दोनों सॉल्यूशन कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से एक ही सॉल्यूशन मिलेगा पाई बाय 4. अब 3 थीटा इक्वल टू 1 बाय 2. सो थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 है, तो थीटा कौन से इंटरवल में होगा, 0 टू 3 पाई बाय 2. 0 टू पाई बाय 2 में थीटा है, तो थीटा किस इंटरवल में होगा, 0 इंटू 3 3 पाई बाय 2. तो पहले 3 थीटा फाइंड आउट करेंगे 0 टू 3 पाई बाय 2 में. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट. तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन मिलेगा मुझे पाई बाय 3, राइट, कॉस 61 बाय 2. सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है, 0 टू 3 पाई बाय 2, 0 टू 3 पाई बाय 2 में फाइंड आउट करने का है. लेकिन कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशन मिलेगा, सेकंड और थर्ड में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड और थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है. सो लाइक दिस देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन एंड हियर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 9. So pi by 9 and pi by 4, these are the two solutions of this trigonometric equation, and this pi by 4 and pi by 9 is in the option A. So this is the solution of this trigonometric equation. So students, these are the 15 important MCQs of this video lecture. All the MCQs are very important. In the last lecture we have also solved the 15 questions. So total 30 questions हमने सॉल्व किए हैं along with the formulas. तो आप फॉर्मूले भी रिवाइज कीजिए. दोनों इम्पॉर्टेंट MCQs के लेक्चर्स भी आप सीरियसली देखिए, उनके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज को अच्छी तरह से नोट कीजिए. सो स्टूडेंट्स, now we will stop here, and in the next lecture we will see the important point of the trigonometric function, that is the solution of triangle. So be ready for the next lecture of solution of triangle. इसके फॉर्मूले हम अगले लेक्चर में रिवाइज करेंगे. सो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. बाय.